حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہوگا، مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ جی بالکل، یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس انجمن حیدری کے زیر اہتمام قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں کوہ نور چوک، محفل حسینی، چھوٹی گٹی چوک، سینٹ میری چوک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس سے قبل سینٹ میری چوک کے اوپر نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس ماتمی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اس ماتمی جلوس کے آغاز کے مقام پر، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کیمرامین کل شکیل آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی جانب سے یوم عاشور کے موقع پر 4600 سے زائد پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پر معمور کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی ماتمی جلوس کے لیے 1400 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جلوس کے اندر جو انٹری پوائنٹ ہے، اس مقام کے اوپر تمام جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس وقت رضاکار جو ہیں وہ انٹری پوائنٹس کے مقام کے اوپر چیکنگ کے بعد عزاداران کو جلوس کے روٹ میں داخل ہونے دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر ڈپیوٹ ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے بھی جلوس کے روٹ کا معائنہ کیا گیا ہے اور انشور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز یہاں پر موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جلوس کے روٹ میں آنے والی تمام گلیوں کو خاردار تاریں لگا کر، ٹینٹس لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور جلوس کے روٹ میں آنے والی جتنی بھی دکانیں ہیں ان تمام دکانوں کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں، اور جو بھی عزادار آ رہے ہیں ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے، انہیں واک تھرو گیٹس کے ذریعے گزارا جا رہا ہے چیکنگ کے بعد، اور اس کے بعد ہی جلوس کے روٹ میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی، کراچی میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے شہر بھر سے عزاداران نشتر پارک پہنچ رہے ہیں۔ نمائش چورنگی سے تفصیلات بتا رہے ہیں قمر علی۔ مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے شہر بھر سے عزاداران نشتر پارک پہنچ رہے ہیں۔ نشتر پارک میں مجلس ہوگی، مجلس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ مجلس کے اختتام پر صبح 10 بجے کے بعد نشتر پارک سے مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ بوتراب اسکاؤٹ جو ہے وہ مرکزی جلوس کی قیادت کرے گا۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچے گا۔ اس وقت جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے مرکزی جلوس کی جو گزرگاہ ہے اس پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ عام ٹریفک کے لیے ایم اے جناح روڈ اور جلوس کی گزرگاہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ جی، پشاور میں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس اور مجالس کی CCTV اور ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندہ محمد دانیال عزیز سے۔ یوم عاشور کے موقع پر پشاور میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور شہر کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ خارجی اور داخلی راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے۔ کسی کو باہر سے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تقریباً 12,000 پولیس جو ہے اس وقت سیکیورٹی پر تعینات ہے، اور جو جلوس کے گزرگاہ ہے تو CCTV اور ڈرون کیمروں کے ذریعے مختلف مقامات کی نگرانی جو ہے 24/7 جو ہے کی جا رہی ہے۔ اس وقت پولیس ہائی الرٹ ہے، اور دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے، اور اندرون شہر میں جو تمام مارکیٹیں اور بازاریں جو ہے وہ بھی بند کی گئی ہے۔ جی، ملتان میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ہیرا حیدریہ سے برآمد ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ جی، آج یوم عاشور کے سلسلے میں ملتان میں مجموعی طور پر 116 ماتمی جلوس برآمد ہوں گے، جبکہ 130 سے زائد مجلس عزا برپا کی جائے گی۔ ان 116 ماتمی جلوسوں میں سے 21 جلوسوں کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 27 مجلس عزا کو بھی حساس قرار دیا گیا ہے۔ آج یوم عاشور کے روز 5000 سے زائد پولیس اہلکار، جبکہ جو والنٹیئرز ہوں گے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ جو یوم عاشور کا مرکزی جلوس ہے صبح سویرے نماز فجر کے بعد امام بارگاہ ہیرا حیدریہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام 6 بجے درگاہ شاہ شمس تبریز پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے ملتان کے جو قدیمی استاد اور شاگرد کے تازیوں سمیت جو 27 تازیوں کے جلوس ہیں وہ بھی 11 بجے سے لے کے 4 بجے کے دوران جو ہے وہ حرم گیٹ چوک سے جو ہے وہ گزریں گے، اور یہاں پر پولیس کے اعلیٰ افسران اور انتظامی افسران جو ہے وہ سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ تمام جلوسوں کی مانیٹرنگ کریں گے، اور جلوس کے شرکا کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ لنگر اور سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جی،
صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یوم عاشور ہمیں قربانی اور حق گوئی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ واقعہ کربلا باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ کربلا ایک روشن چراغ بھی ہے جو ہر دورے کے اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ امام حسین کا عظیم پیغام اصولوں پر ڈٹ جانے، ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کا ہے۔ آج ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے پاکستان کو امام حسین کے پیغام حریت اور عدل کا مظہر بنائیں گے، بھائی چارے، محبت، رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یوم عاشور ہمیں صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ میدان کربلا کا مارکہ ہے کہ کوئی عام مارکہ نہیں ہے یہ، بلکہ رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امام حسین نے اپنے خاندان رفقا کے ہمراہ سچائی اور دین کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معیشت، معاشرت، قومی اتحاد کے لیے ہمیں امام حسین کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی قومی زندگی میں دیانت، برداشت، صبر، قربانی اور اصول پسندی کو جگہ دینا ہوگی۔ اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو داخلی و خارجی فتنوں سے محفوظ فرما کر استحکام نصیب فرمائے۔ جیکب آباد میں آج 53 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوں گے اور تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز مکیش۔ جس وقت میں جیکب آباد کے ڈی سی چوک پر موجود ہوں، دنیا بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی 10 محرم حرام مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم خان نے جیو نیوز کو بتایا کہ جیکب آباد میں 10 محرم حرام کے موقع پر 3000 سے زائد پولیس افسران اور جوان جو ہیں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ رینجرز کو بھی ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جیکب آباد میں 53 جو ہیں ماتمی جلوس برآمد ہوں گے جو اپنے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پیر بخاری پر شام کو جو ہے پہنچیں گے۔ ماتمی جلوس کے راستوں پر 100 سے زائد جو ہیں CCTV کیمرائیں نصب کی گئی ہیں جو کی مانیٹرنگ کے لیے 4 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ایس ایس بی کا یہ کہنا ہے جیکب آباد کے سندھ بلوچستان کے سرحدی علاقوں پر خاردار تاریں لگا کر سخت سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے اور گاڑیوں کو اندر آنے اور جانے کے وقت چیک کیا جا رہا ہے۔ جی فیصل آباد میں یوم عاشور کے موقع پر 25 مجالس اور 153 جلوس برآمد ہوں گے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز حماد احمد۔ جی فیصل آباد میں یوم عاشور کے موقع پر 25 مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ 153 جلوس ضلع بھر میں برآمد ہوں گے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ عزاخانہ شبیر دھوبی گھاٹ سے 9 بجے کے بعد برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے یہاں پر مجلس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں شرکت کے لیے عزاداروں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور ضلع بھر میں 4900 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر معمور کیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستہ سے ہوتا ہوا بوانا بازار سے 8 بازاروں میں داخل ہوگا اور شہر کے دیگر مختلف علاقوں سے جو برآمد ہونے والے جلوس بھی چوک گھنٹہ گھر پہنچنے پر اس مرکزی جلوس میں شامل ہو جائیں گے۔ چوک گھنٹہ گھر کے اطراف 8 بازاروں کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ اس جانب آنے والے تمام راستوں پر رکاوٹیں لگائی گئی ہیں، گاڑیاں کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں اور جہاں پر مختلف جگہ پر بخاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں اور جلوس کے روٹس اور مجالس کی جگہوں پر CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جی اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے موسلادھار بارش ہوئی۔ سید پور ولیج میں سب سے زیادہ 131 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واسا کے مطابق نالا لئی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ اور گوال منڈی میں 10 فٹ بلند ہوئی۔ کہوٹہ میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال، پانی مکانات اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ کچے مکان کی چھت گرنے سے 2.5 سال کی بچی جام بحق ہوئی۔ 3 خواتین زخمی۔ لاہور اور گجرات کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج اور کل اسلام آباد، مری، گلیات، پنجاب، KP، بلوچستان اور کشمیر میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ میں طوفانی بارش، درجنوں مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ بجلی کے 100 سے زائد ٹاور گر گئے۔ مواصلاتی نظام شدید متاثر۔ وابڈا کالونی، گرڈ اسٹیشن کالونی اور کیسکو دفاتر کو نقصان ہوا۔
लाहौर और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस हब्स में वाज़े कमी और मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं आज़म मलिक। जी, इस वक्त लाहौर शहर के मौसम की अगर बात करें तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे किसी पुरानी मोहब्बत की याद उमड़ आई हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर और उसके गिरदोनवा में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। इस वक्त आसमान जो है अब वो गहरे बादलों की ओर में है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज दिन भर का दर्जा हरारत 29 से 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ CEO LWMC से जब बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जहाँ जहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजामात हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। किसी भी जगह पर सड़कें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गंदगी मौजूद है। तो इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। तो अगर मौसम की मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो यूँ है कि शहरी अब सुबह सुबह अपने घरों से उठें, एक अच्छा सा खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट करें और इस खूबसूरत और हसीन मौसम को एंजॉय करें। जी, टेक्सास के वस्ती इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 51 हो गई है, जिसमें 15 बच्चे और मर्दो ख़वातीन शामिल हैं और ये बताया जा रहा है कि 27 लड़कियां अब भी लापता हैं। तूफानी बारिशों से पहले दरिया किनारे समर कैंप लगाए हुए थे। सैलाब के वक्त कैंप में 750 लड़कियां मौजूद थीं। टेक्सास में बारिशें जुम्मा को शुरू हुई थी, जिसके सबब दरिया में पानी की सतह 45 मिनट में 8 मीटर बुलंद हो गई थी। हुक्काम के मुताबिक 90 मिनट में 20 से 26 फुट पानी मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने के सबब दरख्तों की चोटियां तक पानी में डूब गई। सैलाब के सबब कई इलाकों में सड़कें पानी में बह गई, जबकि मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम 850 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया है। हुक्काम ने मजीद बारिशों और के नतीजे में दरियाओं में सैलाब की पेशगोई की है और कहा है कि ये सूरत हाल माहौलियाती तब्दीलियों का खदशा बन सकती है। कराची में लियारी के इलाके आगरा ताज कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं कमर अली। जी, लियारी आगरा ताज में SBCA ने खतरनाक करार दी गई 8 मंजिला इमारत को खाली कराकर सील कर दिया है। ये वो इमारत है, DC साउथ के मुताबिक 50 से 60% रकबे के प्लाट पर ये इमारत जो है वो बनाई गई थी। 8 मंजिला ये इमारत बनाई गई थी। DC साउथ के मुताबिक इस इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था और गैर कानूनी तौर पर ये इमारत बग़ैर जो है वो नक्शा मंजूर SBCA से करा के ये इमारत बनाई गई थी। इस वक्त जो है वो इमारत SBCA ने सील कर दी है। किसी को भी इस इमारत में दाखिले की इजाज़त नहीं है। DC साउथ के मुताबिक जो है वो हुकूमत कोशिश करेगी कि बिल्डर से जो है वो इस इमारत के जो मुतासरा रिहायशी हैं उनको जो है मुआवजा दिलाया जाए ताकि उनका नुकसान ना हो। ताहम उनका कहना था कि ये इमारत जो है ख़तरनाक हो गई है, इसे जो है वो डेमोलिश किया जाएगा और अब इस इमारत में किसी भी रिहायशी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमेरिका से जंग के बाद पहली बार शब आशूर को मंजर आम पर आ गए। तेहरान में मजलिस अज़ा में शिरकत की। इस मौका पर मौजूद शख्सियात ने पुरजोर अंदाज में नारे लगाए। मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। आरिफ वाला में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ वाला। जी बिल्कुल, तहसील भर में जुलूसों और मजालस का सिलसिला जारी है। आज यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर 11 मजालस और 10 जुलूस बरामद होंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत में, जहाँ से आशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबीलों के साथ लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ जनाह चौक पहुँचेगा, जहाँ मजलिस अज़ा और नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पुलिस और तमाम अदारे हाई अलर्ट हैं। जी, आरिफ वाला से इनाम बट की आपने ये रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़िला मियाँवाली में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक अस्मतुल्लाह। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ज़िला भर में पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जबकि जुलूसों की और मजालिस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी जो है वो DC ऑफिस में कायम किए गए कंट्रोल रूम के अंदर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मियाँवाली के ऑफिस में कायम करदा कंट्रोल रूम के इंचार्ज रिजवान डार साहब।
साहब हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने कैमरे लगाए गए हैं और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। मजालस और जुलूसों की निगरानी के लिए 188 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके ज़रिए तमाम मजालस और जुलूस की निगरानी की जा रही है। इस सिलसिले में पाक आर्मी और रेंजर की भी एक कंपनी यहाँ पे डिप्लॉयड है और 1122 और दीगर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो सारे यहाँ पे कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने सुना, रिजवान डार साहब ने बताया कि जी ज़िला भर के अंदर तकरीबन कोई 188 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनके ज़रिए जुलूसों और मजालस की निगरानी की जा रही है और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत निपटने के लिए रेस्क्यू 112 के एहलकार भी इन जुलूसों के साथ तैनात किए गए हैं। जी, सरगोदा में यौम आशूर पर मरकजी जुलूस ब्लॉक नंबर 7 की इमाम बारगाह से निकाला जाता है। इस ताज़िये का तारीखी पस मंज़र बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर ताजिया निकालने की रवायत इतनी ही पुरानी है जितना ये शहर। 1905 में छनियोट के कारीगरों की महारत से तैयार होने वाला ताजिया मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक 7 से करबला मंजिल तक निकाला जाता है। ये मेरे बैग में जितनी भी ज़रियाए मुक़द्दसा खड़ी हैं, जो मंसूब हैं जनाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास से और जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मकाम मुक़द्दस करबला की ज़री की शबीह के साथ, ये रोज़े आशूर तकरीबन 100 साल से बरामद हो रही हैं। ताजिया को हर साल तैयार करना और उसे संवारने की जिम्मेदारी भी एक सदी से एक ही नस्ल के पास है। ये ताजिए तकरीबन 100 साल पुराने हैं, इसमें सारा लकड़ी का काम हुआ है, लोहे का नहीं। 10 मुहर्रम से पहले हम इनका काम करवाते हैं और 10 मुहर्रम को मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह 7 बुलाक से यहाँ से ये बरामद होते हैं और बाज़ार से गुजरते हुए करबला मंज़ल इख्तिताम पज़ीर होते हैं। यौम आशूर के मौके पर निकलने वाला ये ताजिया अपने साथ अकीदत, मोहब्बत का इज़हार और कुर्बानी की सदियों पुरानी तारीख लिए हुए है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। जिला गुजरात में पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज अहमद रासिख। हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ मजालस और निकलने वाले जुलूसों के रास्तों में यहाँ मुख्तलिफ पानी की सबील, सादा पानी की, शरबत की और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे हालकदार गाड़ा और साजिद मुशर्रफ ने पूरे ज़िला में मुख्तलिफ जुलूसों के रास्ते में सबीलों का एहतमाम किया है, जो हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को लोगों ने बहुत सराहा है। इसके अलावा यहाँ पे आम लोगों ने भी नवासा रसूल हज़रत मोहम्मद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद में सबील का एहतमाम किया, जो गुज़श्ता 15 साल से लगने वाली दूध की सबील जो GTS चौक में भी लगाई गई है, वहाँ पे सोने के बर्तनों में उन्हें लोगों को दूध दिया जाता है। उसके बाद वो सोने के बर्तन जो है नजफ़े अशरफ में मौला अली मुश्किल कुशा के रोज़ा मुबारक में पेश कर दिए जाएंगे। जी, गुजरावाला में यौम आशूर के जुलूसों की मॉनिटरिंग सेफ सिटी कैमरों से हो रही है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज ही हम इस वक्त सेफ सिटी में मौजूद हैं, जहां पर यौम आशूर के जो हसास जुलूस और मजालस हैं उनकी लाइव कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त SSP ऑपरेशन सेफ सिटी बिलाल सुलहरी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हमारे पास गुजरावाला में 47 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 219 कैमरे हैं, जो तमाम बड़े और ख़ुसूसन एक कैटेगरी के जुलूस और मजालिस की सुपरविजन के लिए लगाए गए हैं। इसके लिए हमने हर जुलूस के लिए और हर मजलिस के लिए अलग टीम बनाई है, जो उसकी सुपरविजन करती है। मशकूक अफराद, मशकूक अशिया, मशकूक अगर किसी का एटीट्यूड या बिहेवियर है, इसके साथ साथ हम पुलिस की ड्यूटी की भी सुपरविजन करते हैं। आज ही आपने बात सुनी, ना सिर्फ यहाँ पर जुलूस और जो मजालस हैं उनकी निगरानी की जा रही है, बल्कि जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात जो पुलिस एहलकार हैं उनकी भी यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। और जहाँ इन्हें लगता है कोई गफलत है या कोई मशकूक अशिया है, तो यहाँ से फ़ौरन मैसेज पास किया जाता है जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, जिस पर फौरी एक्शन हो रहा है। जी, इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त इसराइल को कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द ताज़िये के जुलूस तारीखी हैसियत रखते हैं। जोदत नदीम की रिपोर्ट देखिए।
उस्ताद का ताज़िया शबी है रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन की। ये ताज़िया 1835 में खलीफा पीर बख्श ने 10 साल की मेहनत से सागवान की लकड़ी से तैयार किया। ये ताज़िया चिन्योटी काम के फ़न महारत की अपनी मिसाल आप है। 8 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा सुनहरी रंग का ये ताज़िया 3 मुहर्रम अल हराम को आस्ताने से निकाल कर जोड़ा जाता है और मुकम्मल तज़ीन और आराइश के बाद 9 मुहर्रम अल हराम की शाम अलंग पाक गेट पर ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ ख़वातीन मस्तूरात आती हैं, आकर इसकी ज़ियारत करती हैं। इसको 50 लोग उठाते हैं। बड़े सगीर पाक व हिंद की सबसे मशहूर ज़ियारत है और इस जैसी ज़ियारत जो है ना पूरे एशिया में नहीं है। उस्ताद के ताज़िये के मुकम्मल होने के चंद साल बाद खलीफा पीर बख्श के शागिर्द अली अहमद चिन्योटी ने एक ताज़िया बनाया जो उस्ताद के ताज़िये से हुजुम में बढ़ा और 150 मन वजनी था। ये ताज़िया शागिर्द का ताज़िया कहलाया। ये दोनों ताज़िये 10 मुहर्रम अल हराम को अपने अपने आस्थानों से अलंग पाक गेट से बरामद होते हैं जो हरम गेट चौक पर ज़ियारत के लिए कुछ देर रखे जाते हैं और फिर ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए बीबी पाक दामन कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। लोग बहुत दूर दूर से इसकी ज़ियारत करने आते हैं और मनते मुरादें मांगते हैं और अपने दिल की मुरादें पूरी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। इनके सदके हमारी अल्लाह दुआ कबूल कर देता है, जो मांग के देते हैं वो। उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों के लाइसेंस दारान का ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से है जो मुल्तान में तारीखी मजहबी हम आहंगी और भाईचारे का मुँह बोलता सबूत है। मुल्तान के तारीखी उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये चिन्योटी फ़नकारी और मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसाल हैं जो मुहर्रम अल हराम में अहले सुन्नत की जानिब से भाईचारे का पैगाम देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ जोधा नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। लकड़ी का शहर कहलाने वाले तारीखी शहर चिन्योट में बरसों से 40 से 50 फुट बुलंद ताज़िये निकाले जाते हैं। सुनहरी ताज़ियों पर देखते हैं मुर्तज़ा चमन की ये रिपोर्ट। चिन्योट दरियाए चनाब के दामन में बसा ये कदीम शहर जहाँ ताज़िये सिर्फ मज़ाहिर नहीं, मोहब्बत, फ़न और सब्र के मरक्का हैं। मुहर्रम उल हराम में यहाँ निकाले जाने वाले हर एक ताज़िये में फ़न तामीर की ऐसी झलक है जो सदियों की पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए है। अज़ादार हुसैन का मानना है कि ये ताज़िये सब्र की अलामत और इंसानियत के लिए मशअल राह है। यहाँ की सबसे खूबसूरत पहचान ये है कि इन 9 ताज़ियों में 7 लाइसेंस अहले सुन्नत जबकि 2 अहले तशी जमात के पास हैं। जब 10वीं मुहर्रम की शाम 15 फुट चौड़े, 50 फुट बुलंद और 60 मन से जायद वजनी ये ताज़िया तंग गलियों से गुजर कर खुले मैदान में इकट्ठे होते हैं तो चिन्योट कर्ब व बला की हम आहंगी का मंजर पेश करने लगता है। चिन्योट के ताज़िये फ़िरकों की नहीं, फ़नून की, फ़िक्रों की और फाका ज़दा तारीख़ की सलामी हैं जहाँ हर ताज़िया हुसैन है और हर अक़ीदतमंद अज़ादार। मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चिन्योट।